یقیناً سب سے پہلے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو موقع عطا کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکے، ہم نے خدا کی پرستش کی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ذریعے سیکھیں کہ خدا جو ہے آج کے کلام کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھانے کا۔ آمین۔ اور یقیناً آج جو ہے ہیپی فادرس ڈے بھی ہے، یعنی کہ جب ہم ایک دن ہے مخصوص کیا گیا جب ہم والدین کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جس طرح ہیپی مدرس ڈے ہوتا ہے جب ماؤں کو عزت دی جاتی ہے، آج کا جو دن ہے وہ ہیپی فادرس ڈے، یعنی جب باپ کو عزت دی جاتی ہے، جب باپ کے جو اہمیت ہے، باپ کا مقام ہے، اسے منایا جاتا ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے، اسے واضح کیا جاتا ہے کہ کس طرح جو باپ ہے محنت کرتا ہے، کس طرح اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور کس طرح اپنی اولاد کے لیے وہ گناہ بھی کر جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کو، اپنے نیک اعمال کو، یعنی کہ اپنے جو آخرت ہوتی ہے اسے بھی داؤ پر لگا لیتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کی خاطر گناہ کرتا ہے، اولاد کی خاطر اگر اسے ٹھگی لگانی پڑے، کوئی برا کام کرنا پڑے، وہ بھی وہ کرتا ہے تاکہ اسے اپنی اولاد کی ضروریات کا، فکروں کا خیال ہوتا ہے۔ آمین۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے آج سیکھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 20 باب، پیدائش سے آگے ہے خروج کی کتاب، اس کا 20 باب، اس کی 12 آیت خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے اور اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام آج ہمیں کیا سکھانے کا ہے۔ خروج کی کتاب، اس کا 20 باب، اس کی 12 آیت خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خدا کے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ یقیناً ہم نے خدا کے کلام میں سے بڑی خوبصورت آیت کو پڑھا ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ ایک حکم ہے، یہ صرف آیت نہیں ہے، بلکہ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، جب موسیٰ کو 10 احکام دیے گئے تو ان 10 احکام میں سے یہ ایک حکم ہے جسے 5واں حکم کہتے ہیں، اور یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی، بلکہ کیا لکھا ہے؟ باپ اور ماں کی۔ پہلے جو ہے باپ کا درجہ یہاں پر دکھایا گیا ہے، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، وہ گھرانے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تب تیرا خدا تیری عمر کو دراز کرے گا۔ خدا نے حکم بھی دیا ہے، اور اس حکم کو ماننے کے بعد ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے گا تو تیرا خدا تیری عمر کو جس ملک میں تو رہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ دراز کرے گا۔ آمین ہلیلویا۔ ہم اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کہانی سے سیکھیں گے کس طرح جو ہے باپ ہم سے محبت کرتا ہے، اور کس طرح وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اور کس طرح وہ سب کچھ سہ لیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی دکھ پہنچنے نہیں دیتا۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے لوکا کی کتاب، اس کا 15 باب، اس کی 11 سے 32 آیات تک خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ لوکا کی کتاب، اس کا 15 باب، اس کی 11 سے 32 آیات تک۔ خدا کے کلام میں جب ہم اس آیات کو پڑھتے ہیں تو بڑے خوبصورت خدا کے کلام میں ایک انجیل میں ایک تمثیل سکھائی گئی ہے، اور یہ تمثیل ہے کھوئے ہوئے بیٹے، یعنی کہ مصرف بیٹے کے بارے میں۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، اور ان 2 بیٹوں میں سے ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اور یقیناً اس دور میں یہ قوانین ہوتا تھا کہ
तब ही औलाद को उनकी प्रॉपर्टी मिलती थी जब उसका बाप जो था मर जाता था, और यकीनन वो अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा होगा, छोटा बेटा। और यकीनन जब वो छोटा बेटा इंतजार करता है लेकिन बाप तो अभी तक जिंदा है, नहीं मरा, तो वो क्या कहता है, ऐ बाप अब तू मुझे मेरा हिस्सा जो बनता है दे दे। और यकीनन जब हम देखते हैं कि वो अपना हिस्सा मांगता है तो बड़ा बेटा भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, बाप से तो वो हिस्सा मांग रहा है, यानी कि बाप जो है परेशान होता है कि ये मेरे मरने का इंतजार कर रहा है या ये मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं इससे इतनी मोहब्बत रखता हूँ और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और जो बड़ा बेटा यहाँ पर देखते हैं वो खड़ा है, वो खामोश है, वो ये नहीं कहता कि तू क्या कर रहा है, या तू क्यों नहीं हिस्सा मांग रहा है, या क्या तुझे सब कुछ नहीं मिल रहा। तो जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो वो क्या है, चुप रहा है, उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर बड़े बेटे का आखिर में जाकर जिक्र होता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मुझे जो मेरा हिस्सा बनता है वो मिल जाए, और वो चाहता है कि मैं फरमाबरदार भी रहूं, मैं कुछ बोलूं भी ना और मेरा काम भी हो जाए। वो कहता है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, इसलिए वो एक अल्फाज भी नहीं निकालता। बाप जो है गमगीन होता है, परेशान होता है कि मैं अपनी औलाद के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, उसे सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करता हूँ, और ये फिर भी मुझसे हिस्सा मांग रहा है। तो कुछ दिन गुजरने के बाद जो है बाप अपने छोटे बेटे को हिस्सा दे देता है, और यकीनन जो छोटा बेटा है वो ऐश इशरत का शकीन है, और यकीनन वो ये नहीं देखता कि चलो मैं थोड़ी देर बाद हिस्सा बेच दूंगा, बल्कि नहीं, वो चाहता कि मैं फौरन बेचकर फौरन चला जाऊं। और यकीनन जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अगर हमने एक मिसाल है, ये मोबाइल बेचना है, अगर हम एक ही दिन में बेचना चाहते हैं तो ये मोबाइल क्या सस्ता बिकेगा, लेकिन अगर हम इंतज़ार करेंगे, अच्छे ग्राहक का इंतज़ार करेंगे तो ये मोबाइल अच्छी कीमत में बिक जाएगा। लेकिन जो वो बेटा है उसने ये नहीं कहा कि मुझे अच्छे दाम मिल जाए, बल्कि वो जल्दी जल्दी अपना हिस्सा बेचता है और चला जाता है, और तब ऐशो इशरत में अपना पैसा खर्च कर देता है। और जब सब पैसा लुटा देता है तो क्या होता है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचता। और यकीनन जब खाने को कुछ नहीं बचता तब वो क्या तलाश करता है, नौकरी, जॉब को तलाश करता है। और उसे क्या जॉब मिलती है कि तू जो सूरों को चराएगा, जो सूर खाएंगे तू भी उसी में से खाएगा। ये है उसकी नौकरी और ये है उसका मुहावजा, ये है उसकी तनख्वाह। और यकीनन जब वो सूरों को खिलाता है तो सूर उसे खाने नहीं देते। यकीनन जानवर जो है ऐसे ही होते हैं, वो अपने चारा किसी दूसरे को खाने नहीं देते। और यकीनन जब एक दिन उसे होश आया तो वो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या कहता है, फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हूँ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। यकीनन जब हम इन अल्फाज को देखते हैं वो अपने आप को पछतावा नहीं होता उसे, बल्कि वो सिर्फ सोचता है कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं ये तरकीब लड़ाता हूँ तो मैं अपने बाप के पास जाकर कहूँगा, ऐ बाप, मैंने गुनाह किया है और तेरे नौकर यकीनन अफराज से रोटी खाते हैं, तो मैं इस लायक नहीं कि अब मैं तेरा बेटा बनूं, क्योंकि मैंने हिस्सा ले लिया है, मैंने तेरी नाफरमानी की है और तेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, तो अब मुझे अपने नौकरों में शुमार कर ले ताकि कम से कम मैं भूखा तो ना मरूं। तो क्या होता है, वो ये सोच कर चला जाता है। और यकीनन उस दौर में जो बेटा ऐसा करता था उसे बुरा माना जाता था, और यकीनन जब वो वापस आता था तो उसे संसार किया जाता था, ताकि वो अपने बाप के साथ इतना बुरा सलूक करके गया है और उसने अपने बाप के मरने का इंतज़ार नहीं किया और पहले ही अपना हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी लेकर चला गया है। और उस दौर में बड़ा सख्त कानून ये था कि इस तरह इसे ऊपर उठा नहीं दे सकते। जिस तरह आज हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, कोई इतने नहीं पहन सकता, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, इसे बुरा माना जाता है कि ये बड़ा बुरा इंसान है,
जब ये बड़ा बेहया है, इसी तरह उस दौर में भी ऐसा ही था कि ऐसा लिबास पहनते थे कि यहाँ तक ना नजर आए, बल्कि सिर्फ पाँव ही नजर आए। और जो बाप है, जब वो बेटे को दूर ही से देखता है कि आया लोग इसे संसार ना कर दें या पत्थर मार के इसे हलाक ना कर दें या लोग इसे नुकसान ना पहुंचाए, तो वो दूर ही से देखता है और अपने बेटे को जाकर गले लगा लेता है, चूमता है। और यकीनन जब हम देखते हैं तो वो जब दौड़ कर जाता है तो यकीनन जब उसने चोगा पहना होगा तो वो ऐसे चोगे से नहीं जा सकता या ऐसे ऐसे करके भी नहीं जा सकता। यकीनन उसने अपना चोगा उठाया होगा। और यकीनन ये बड़ा बुरा माना जाता है कि किस तरह उसने अपने पाँव दिखाए हैं, किस तरह अपनी टांगें दिखाई हैं। और यकीनन जो बाप है, यहाँ पर जब हम देखते हैं उसने ज़माने की ज़िल्लत को बर्दाश्त कर लिया है ताकि मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और यकीनन जब वो बेटे से मिलता है तो उसे एकदम माफ़ कर देता है। आमीन, हालेलुया। क्या कर देता है? माफ़ कर देता है। और वो क्या कहता है, जब हम खुदा की कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा, क्या लिखा है, अच्छे से अच्छा लिबास जल्दी निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाए। हालेलुया, हालेलुया। बाप क्या कर रहा है? खुशी मनाता है कि मेरा बेटा जो खोया हुआ था, जो मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, अब मिल गया है। और यकीनन इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी खुशी मनाता है। चाहे हम जितने मर्जी गुनाह कर लें, चाहे जितने मर्जी हम खुदा की नज़र में बेहयाई के काम कर लें, चाहे जितनी मर्जी चोरियां कर लें, लेकिन जब हम पछतावा कर लेते हैं, जब हम अपने बाप की तरफ आ जाते हैं, तो बाप जो है हमें बढ़कर गले लगा लेता है, बाप जो है चूमता है। और यकीनन बाप ने ऐसा किया भी है। उसने अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा। और उसके बेटे यीशु ने, जिस तरह यहाँ बाप ने जिल्लत सही है, इसी तरह उसके बेटे यीशु ने हमारी खातिर जिल्लत सही, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ा, हमारी खातिर कांटों का ताज पहना और हमारी खातिर उसे ठट्ठों में उड़ाया गया ताकि हम उस जिल्लत का शिकार ना हो, हम बच जाएं। ये है हमारे बाप की मोहब्बत। आमीन, हालेलुया। ये है हमारे बाप की मोहब्बत। और यकीनन जब बाप हमसे मोहब्बत करता है, जब बाप हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हम पर रहम करता है, तो यकीनन बेटे का भी एक फर्ज होता है कि वो अपने बाप की जिम्मेदारी को पूरा करे, वो अपने बाप की केयर करे। जिस तरह जब हम देखते हैं कि बाप जो है जब बूढ़ा हो जाता है, तब बच्चों का काम होता है कि जिस तरह बाप ने जब हम छोटे थे, हम कुछ नहीं थे कर सकते, उसने हमें संभाला, इसी तरह आज हम अपने माँ बाप को संभाले। आमीन, हालेलुया। और यकीनन जिस तरह बाप जो है मोहब्बत करता है, अपनी जिल्लत हम पर सह लेता है, और यकीनन हमारी खातिर मेहनत मजदूरी करता है, और यकीनन हमारी खातिर झूठ फरेब भी करता है ताकि हम बच जाएं। जिस तरह हमारे बाप ने हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें जो खुदा हमें देना चाहता था। आमीन, हालेलुया। और यकीनन खुदा जो है आज भी वही बाप है, इसने हमारी खातिर अपना बेटा भेजा और आज वही बाप हमारी फिक्रें करता है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि खुदा हमारी फिक्र नहीं करता या बाप हमारी फिक्र नहीं करता, लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है। क्योंकि खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 9 से 11 आयत में, तो खुदा का कलाम में लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें देना क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा जो जमीनी बाप है वो बुरा होकर हमें अच्छी चीजें देना चाहता है। तो सोचिए हमारा आसमानी बाप वो कितना हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे कितना प्यार करता है, और वो पाक है और वो हमें अच्छी चीजें देना क्यों ना जानेगा। उसने हमें अच्छी चीजें देने के लिए तैयार की हैं। उसने हमारे लिए आसमान पर आसमानी मकाम बनाए हैं।
उसने हमारी खातिर वो नदियां बनाई हैं जहाँ पर दूध बहता है, जहाँ पर शहद बहता है। उसने हमारी खातिर वो सड़कें बनाई हैं जो सोने की हैं। आमीन, हालेलुया। वो हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा है और वो हमें उस मकानों में दाखिल करना चाहता है। और इसी खातिर उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के दावेदार हो जाएं, ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट बन जाएं, ताकि हम जब उस जिंदगी में दाखिल हो तो खुदा जो है हमें कह सके, हमें बढ़कर गले लगा सके, हमें चूम सके, हमें मोहब्बत कर सके। और ये तब ही होगा जब हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देंगे और खुदा के पास आ जाएंगे। और यकीनन वो माफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो माफ करने की कुदरत रखता है और यकीनन आज हमें जरूरत है कि जब वो माफ करने की कुदरत रखता है, जब वो हमारी खातिर जिल्लत को बर्दाश्त कर लेता है, हमारी खातिर वो इतनी परेशानियों को बर्दाश्त कर लेता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि ना सिर्फ हम अपने आसमानी बाप की मर्जी को बजा लाएं बल्कि अपने ज़मीनी बाप की मर्जी को भी बजा लाएं। और यकीनन जो एक ज़मीनी बाप होता है वो आसमानी बाप का आईना होता है। जिस तरह ज़मीनी बाप जो है अपने बच्चों की परवाह करता है, अपने बच्चों की खातिर सख्त मेहनत मजदूरी करता है, उस तरह हमारा आसमानी बाप जो है वो भी हमारी परवाह करता है। और वो नहीं चाहता कि किसी की भी तौबा तक नौबत ना पहुंचे, बल्कि वो चाहता है कि हर एक जान तौबा करे और रजू लाए ताकि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। आमीन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से दुआ मांगेंगे और खुदा से कहेंगे, क्या खुदा मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं। और खुदा से दुआ मांगे, क्या खुदा मैं तेरा ताबेदार बेटा बनना चाहता हूँ, मैं तेरी ताबेदार बेटी बनना चाहती हूँ। हम खुदा से दुआ मांगेंगे, लेकिन वो हमें मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो हमारे खातिर जिल्लत बर्दाश्त करने वाला खुदा है। हमारा भी फर्ज बनता है हम उसके ताबेदार बन जाए, हम उसके फरमाबरदार बन जाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें।